ਵੈਲਕਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ +1 +2 ਦੇ 4 ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼, 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ, ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਐਂਡ ਵੈਕਟਰਸ। ਸੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 9th ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਪਲੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 2 ਐਕਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਐਕਸ ਡੈਸ਼ ਐਕਸਿਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਐਕਸ ਧੁਰਾ ਤੇ ਐਕਸ ਡੈਸ਼ ਧੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਈ ਤੇ ਵਾਈ ਡੈਸ਼। ਸੋ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, 1 2 3 4 5। ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ, 1 -2 -3 -4। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, 1 2 3 4 5। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ y ਨੈਗੇਟਿਵ, -1 -2 -3 -4। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ -5 6 ਜਿਸ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹਦੀਆਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ x ਵੀ ਹੋਏਗਾ y ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀ x y, ਠੀਕ ਹੈ। x ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਬਸੀਸਾ, y ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਭੁਜ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। x ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਬਸੀਸਾ, y ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਸਟ ਸਮ ਹੈ ਪਲਾਟ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? 1 3 -2 4 1 -5 -2 2। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 1 ਐਂਡ 3। ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? x1 y3। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਓਰੀਜਨ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। x1, x ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਦੇਖੋ x ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਨੇ, ਇਹ x ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ x ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਸੋ x1 ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੈਨ y = 3। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। y3 1 2 3, y ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ x1 y3, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ x -2 y4। ਫਿਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ x -2, x ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, -1 -2 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੈਨ y = 4, y4, 4 y ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, 1 2 3 4। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x -2 y4। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ x -1 y5। ਦੇਖੋ x -1 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, y5 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ -1 ਐਂਡ 5। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ -2 ਐਂਡ -2, x ਵੀ -2 y ਵੀ -2। ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, x -2 ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, -1 -2 ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਦੈਨ y -2, ਹੁਣ y -2 ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਨੈਗੇਟਿਵ y ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ 2 ਤੋਂ ਚੱਲੇ -1 -2। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ x -2 y -2। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲਾਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਲਾਟ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ +1 +2 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ
ये साडे कोल 4 पार्ट्स डिवाइड हो जाता है जिन्हों असीं कहने आ 4 क्वाड्रेंट्स। पंजाबी वाले स्टूडेंट ने पढ़िया होएगा चौथाई। सो यह हुंदा है फस्ट क्वाड्रेंट, यह साडे कोल है सैकेंड क्वाड्रेंट, यह साडे कोल थर्ड क्वाड्रेंट, यह फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, देखो कोई भी पॉइंट एक्स ते वाई की फॉर्म च होएगा, इधर साडे कोल एक्स प्लस दा है पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। सो पहले क्वाड्रेंट दे विच दोवें पॉजिटिव हुंदे ने, दूसरे क्वाड्रेंट दे विच एक्स नैगेटिव वाई पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट दे विच वेखो इधर नूं एक्स भी नैगेटिव हो गया, थल्ले नूं वाई भी नैगेटिव। सो दोनों जिहड़े एक्स वाई है नैगेटिव होणगे थर्ड क्वाड्रेंट च। फोर्थ क्वाड्रेंट च इधर एक्स ते पॉजिटिव है बट वाई नैगेटिव है। ठीक है, सो साडे कोल 4 क्वाड्रेंट हुंदे ने, पहले च दोवें पॉजिटिव, दूसरे च नैगेटिव पॉजिटिव, थर्ड च दोवें नैगेटिव ते चौथे च पॉजिटिव नैगेटिव। सो ये बच्चों तुहानूं साइंस का पता होना चाहिए है। ठीक है, सो असी कोई पॉइंट दिता है उन्होंने बिना प्लॉट किए ही मीनस ग्राफ से दिखाए बिना ही डिसाइड कर सकते हैं कि वो जोड़ा पॉइंट है किहड़े क्वाड्रेंट च है जां किहड़े एक्सिस के उपर है। ठीक है, सो सपोज असीं सम करते हैं इन विच क्वाड्रेंट और ऑन which axis do each of the points lie। सो ये दसना है कि जिहड़े पॉइंट गिवन ने ये किहड़े क्वाड्रेंट जां किहड़े एक्सिस दे उपर ने। 2 -3 -1 2 -1 -2 1 -4 0 5 -1 0। ठीक है, सो असीं इन्हां नूं हुण पॉइंट्स नूं दिखाउणा नहीं है, सिर्फ इत्थों ही डिसाइड करना है कि जिहड़े पॉइंट्स ने किहड़े क्वाड्रेंट दे विच ने। देखो पहला पॉइंट है प्लस माइनस। सो देखो बच्चों प्लस माइनस किहड़ा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। यह क्वाड्रेंट है साडे कोल एक्स पॉजिटिव वाई नैगेटिव। सो ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट जिन्हों असीं कहने आ चौथाई। -1 2 मीनस नैगेटिव पॉजिटिव। देखो नैगेटिव पॉजिटिव किहड़ा क्वाड्रेंट है, सैकेंड। ये साडे कोल आ जाएगा सैकेंड क्वाड्रेंट। -1 -2 एक्स भी नैगेटिव वाई भी नैगेटिव, दोवें नैगेटिव किहड़े ने, थर्ड क्वाड्रेंट। ये साडे कोल आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरी चौथाई। पॉजिटिव नैगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई नैगेटिव। देखो ये किहड़ा क्वाड्रेंट है, एक्स पॉजिटिव वाई नैगेटिव। ये भी साडे कोल फोर्थ क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव नैगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। सो 0 5। सो बच्चों सानू पूछा है कि किहड़े क्वाड्रेंट ने जां विच एक्सिस जां किहड़े धुरे ते ने। 0 5 देखो जे असीं 0 5 देखिए जदों 0 5 पॉइंट प्लॉट करना है एक्स 0, इत्थे साडे कोल एक्स 0 है, ना तो एक्स पॉजिटिव वाले पासे जाएगा ना एक्स नैगेटिव वाले पासे। ये पॉइंट का तुसीं खास ध्यान रखना है। देखो एक्स 0 है, ना तो एक्स इधर जाएगा ना इधर जाएगा, इत्थे ही रह जाएगा। वाई 5 चल गया ऊपर। सो ये किहदे उपर आ गया है, वाई एक्सिस के उपर। ये क्वाड्रेंट दे विच नहीं है, असीं इहनूं कहांगे ये वाई एक्सिस के उपर है। ये किहदे उपर है, वाई एक्सिस ते। ठीक है, -1 0 एक्स -1 साडे कोल इत्थे आ गया, एक्स नैगेटिव इधर हुंदा है। वाई की वैल्यू है 0। सो वाई ना तो उपर जाएगा ना ही थल्ले वाले पासे। सो इत्थे रह जाएगा पॉइंट -1 0। सो ये पॉइंट किहड़े एक्सिस ते आ रहा है, नैगेटिव एक्स ते। ठीक है, इन्हूं तुसीं कह सकते हो जां एक्स डैश एक्सिस जां तुसीं कह सकते हो नैगेटिव एक्स, नैगेटिव एक्स एक्सिस।
ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਐਕਸ ਡੈਸ਼ ਧੁਰਾ ਜਾਂ ਵਾਈ ਧੁਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ x1 y1 x2 y2, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੂਰੀ ਸੂਤਰ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਦੂਰੀ ਸੂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਗਮੂਲ 'ਚ x2 ਮਾਈਨਸ x1 ਦੀ ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ y2 ਮਾਈਨਸ y1 ਦੀ ਸਕੁਏਅਰ। ਦੂਰੀ ਸੂਤਰ ਨਾਲ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੂਰੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਸਮ ਹੈ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਫਸਟ ਸਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 3 4 1। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x1 y1 x2 y2। ਸੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। x2 ਮਾਈਨਸ x1 ਮੀਨਸ x2 ਮਾਈਨਸ x1। डिस्टेंस फार्मूला देखो x2 माइनस x1 दी स्केयर प्लस y2 माइनस y1 दी स्केयर। सो पहला तुसीं चाहे तो इन्होंने लिख सकते हो कि x1 y1 केड़ा है, x2 y2 केड़े ने पॉइंट। x2 4 माइनस x1 2 इहदी स्केयर प्लस y2 1 माइनस y1 3 ਇਹਦੀ ਸਕੇਅਰ। ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ 4 ਮਾਈਨਸ 2 2 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 1 ਮਾਈਨਸ 3 ਮਾਈਨਸ 2 ਇਹਦੀ ਸਕੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਚੋਂ 3 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ -2 ਆਏਗਾ। 2 ਦੀ ਸਕੇਅਰ 4 ਮਾਈਨਸ 2 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਵੀ 4, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਕੇਅਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 4 ਪਲੱਸ 4 8। 8 ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਹੁਣ ਵਰਗਮੂਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 4 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 2 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 1। ਸੋ 8 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। ਇਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋੜਾ, 2 ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ 2 ਇਕੱਲਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਯੂਨਿਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮੀਟਰ ਫੁੱਟ कुछ भी हो सकता है, इस करके यूनिट्स लिख देंगे, जिन्होंने पंजाबी तुसीं लिखते सी इकाइयाँ। ठीक है, ये तुसीं लिख देंगे सी इकाइयाँ। सो जिन्ने भी यूनिट्स होएगा। ठीक है, सो नैक्सट सम आप ये एक होर देखते हैं बच्चों। सैकेंड सम है जिथे असीं मिसटेक कर दें, किसी वेले असीं वो मिसटेक का ध्यान रखना है। सैकेंड सम असीं देखते हैं। सैकेंड सम है साडे कोल -3 -7 3 एंड 1। सो माइनस के साइन के जोड़े ने बच्चों को गलती हो जाती है। हुण असीं वो बिल्कुल ध्यान ना करांगे कि असीं माइनस तो साइन का किवें ध्यान रखना है। देखो x2 की है 3 माइनस x1 देखो बच्चों -3 है। सो माइनस ते -3 ये साडे कोल आ जाएगा +3। सो ये मिसटेक नहीं करनी साइन की। y2 साडे कोल 1 माइनस y1 -7 माइनस माइनस +7 दी स्केयर। सो 3 + 3 6 दी स्केयर, 1 + 7 8 दी स्केयर। सो ये साडे कोल आ जाएगा 6 दी स्केयर 36 8 दी स्केयर 64 विच इज़ इक्वल टू स्केयर रूट 100। सो 100 का असीं हुण स्केयर रूट फाइंड करिए वर्गमूल। पहला 2 के टेबल पर जाएगा 50, फिर 2 के टेबल पर 25। सो 25 हम 2 के टेबल पर भी नहीं जाएगा, 3 पर भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 के टेबल पर। 5 का 1। सो 100 का साडे कोल जिहड़ा स्केयर रूट आएगा वो आ जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5। सो ये साडे कोल आ गया 2। 5 के जोड़े चो एक 5 बाहर आ गया पेयर चो,
10। सो ਇਹਦਾ आंसर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ अंडर रूट खत्म हो जाएगा 10 यूनिट्स या 10 इकाइयाँ। नैक्सट सामने बच्चों साढ़े को डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलीनियर, जिन्होंने पंजाबी च कीता होएगा तुसी दसो कि हेठ लिखे बिंदु समरेखी हैं या नहीं। पॉइंट्स साढ़े को ने 1 5 2 3 -2 -1 आर कोलीनियर। बच्चों कोलीनियर या रेखी पंजाबी जिन्होंने कह देंगे ने कि हेठ के बिंदु जिहड़े ने रेखी बिंदु हैं या नहीं। कोलीनियर का मतलब कि तिन्ने बिंदु इक्को ही लाइन दे विच आने चाहिए ने या तिन्ने पॉइंट जिहड़े ने इक्को लाइन दे विच आउणगे। ये कंसैप्ट बच्चों तुसीं बहुत ध्यान नाल समझना है। देखो जे ए 3 पॉइंट्स ने जिहड़े साडे कोल एक ही लाइन ते आ रहे ने A B C, फिर इन्हां दोवां दा डिस्टेंस AB ते BC दा देखो जे प्लस करिए तो AC दे इक्वल नहीं हो जाएगा। ठीक है, सो डिस्टेंस फार्मूला असीं की करांगे, असीं 2 दे डिस्टेंस का सम करके दिखा दांगे कि जे थर्ड दे डिस्टेंस दे इक्वल है तो जिहड़े पॉइंट्स ने ये कोलीनियर होणगे, जे डिस्टेंस दे इक्वल नहीं है फिर ये कोलीनियर नहीं होणगे। ठीक है, सपोज असीं ये पॉइंट्स नूं मान लैंदे आ A B C, तो सानू डिस्टेंस फार्मूला हुण पता है, असीं डिस्टेंस सारे पॉइंट्स का कढांगे A B का डिस्टेंस मीनस यह 2 पॉइंट का डिस्टेंस असीं कढीए वही फार्मूला x2 - x1 स्केयर प्लस y2 - y1 स्केयर का अंडर रूट 2 - 1 दी स्केयर प्लस 3 - 5 दी स्केयर। सो 2 - 1 1 दी स्केयर 3 - 5 - 2 दी स्केयर। ये साडे कोल आ जाएगा 1 दी स्केयर 1 2 दी स्केयर माइनस दी 4 अंडर रूट 5। तो साडे कोल ए बी आ गया है अंडर रूट 5। इस तरह असीं फाइंड करांगे बी सी। बी ते सी हुण असीं ये पॉइंट लैके चलांगे, यह साडे कोल हो जाएगा x2 y2 x1 y1 -2 x1 माइनस होएगा स्केयर प्लस y2 - y1 स्केयर। सो दिस इज इक्वल टू -2 -4 दी स्केयर प्लस -1 ते -3 -14 दी स्केयर। -4 दी स्केयर साडे कोल 16 -14 दी स्केयर साडे कोल कितना हुंदा है 196। सो इनू तुसीं प्लस करोगे साडे कोल आ जाएगा 212। सो इनू असीं देखते हैं बच्चों साडे कोल 4 ते या 2 ते डिवाइड हुंदा है कि नहीं। ये फैक्टराइज करिए असीं वर्गमूल फाइंड करिए 212 का 2 ते 106 दैन 2 ते 53। ये साडे कोल आ जाएगा 253 ते 1 वारी आ जाएगा अंडर रूट 53। ठीक है बच्चों, सो हुण असीं फाइंड करते हैं सी ए। x2 - x1 मतलब 1 + 2 हो जाएगा क्योंकि -2c प्लस y2 - y1। सो 11c माइनस का प्लस हो गया साढ़े को आ जाएगा 3 दी स्केयर प्लस 16 दी स्केयर। सो 3 दी स्केयर 9 16 दी स्केयर 256। ठीक है बच्चों, सो ये साढ़े को प्लस करके आ जाएगा 265। 265 का असी स्केयर रूट फाइंड करिए साढ़े को आ जाएगा 5 के टेबल ते 5 3। सो 53 ते फिर साढ़े को आ जाएगा 1। सो ये साढ़े को सॉल्व होके फिर यही रह जाएगा क्योंकि कोई भी पेयर नहीं बनेगा 265। सो बच्चों देखो जेडे 2 स्मॉल आए ने √5 ते 253 इन्होंने दोनों प्लस करके साढ़े को नहीं बन रहा मीनस ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू सी ए। सो पॉइंट्स आर नॉट कोलीनियर। जे ये साढ़े को
प्लस करके सेम आ जाते, फिर असी पॉइंट कह देना सी कोलीनियर। सपोज जिवें मान लो साडे कोल ए बी आ जाता 3 तो बी सी की वैल्यू आ जाती 4 तो सी ए की वैल्यू साडे कोल आ जाती 7 मीनस 3 + 4 = 7। जे साडे कोल इस तरह आ जाता कि 7 = 7 फिर असी कहना सी दीज पॉइंट्स आर कोलीनियर। जे इक्वल नहीं आया फिर असी कहांगे पॉइंट्स आर नॉट कोलीनियर। सो स्टूडेंट्स ये साडे कोल कोआर्डीनेट ज्योमैट्री नाल रिलेटेड बेसिक कंसैप्ट जिहदे विच असीं क्वाड्रेंट पढ़े ने, एक्सिस पढ़े ने, ठीक है। उस तो बाद डिस्टेंस फार्मूला पढ़िया है। तुसीं इन्हां नाल दे सम जिहड़े ने अपनी बुक विचों ट्राई करने हैं तो कमेंट करके जरूर दसना है कि तुहानूं ये लैक्चर किवें दा लगा। जे कोई प्रॉब्लम है तुसीं उहदे बारे भी पुछ सकते हो। सो नैक्सट लैक्चर विच असीं इसे चैप्टर का नैक्सट टॉपिक करांगे। वीडियो नूं लाइक ते शेयर कर दिओ। चैनल नूं जे तुसीं अजे तक सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब कर लिओ। थैंक यू।